15 अक्टूबर से 10 दिन तक रामलीला का आगाज हो चुका है और अब समिति के पुराने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये पूछते हैं कि इस बार क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रोहिणी की बल्कि दिल्ली की नंबर 1 रामलीला बन चुकी है। आइए सर, क्या शुभकामना देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? इतने सालों से आपने सेवा की है और फिर एक बार आपने जिम्मेदारी संभाली है। आज उम्मीद है इस बार की रामलीला अच्छा सर, बताया जाता है आज फिर 00 फिर 2024 अब इस पर लिंक आएगा, लिंक पे फॉर्म आएगा, फॉर्म अपलोड करना, उसमें केवल नाम पता अपना टेलीफोन नंबर भरना है, ठीक है ना? सभी को जय श्री राम। और कुछ क्षणों में आज के कार्यक्रम
लेकिन क्या थोड़ा और जोर से हो सकता है? एक बार और जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। क्या हुआ? जी भी आ गए हैं और धर्मशाला को बनाने में जिन्होंने दिन रात एक किया और यहाँ खड़े रहे, हमारे पूर्व विधायक श्री जय भगवान जी भी हमारे बीच थे। अभी कुछ कार्य के लिए बाहर गए हैं, वो अभी फिर हमारे ज्वाइन करेंगे। आप सबका स्वागत है और हिंदू पर्व समारोह समिति के 30वें रामलीला के भव्य भूमि पूजन पर आप सबको फिर से एक बार साधुवाद देता हूँ कि आप सबके कारण ही रामलीला का ये भव्य मंचन हर वर्ष हो पाता है। इस वर्ष जैसे कि आपको विदित है, बारिश इस वर्ष प्रतिदिन हुई और कोई भी निर्णय नहीं ले सके हम। अब भी ये 11th आवर पे हमने 2-3 दिन में निर्णय ले और कुछ लोग तो भी रामलीला मैदान पर भी जा रहे हैं, तो कोई ऐसी स्थिति बनी रही जिससे बहुत I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate
हौसला अफजाई करें। दूसरी प्रस्तुति और उसके बाद फिर विधिवत कार्य शुरू करेंगे आज का। जय श्री राम।
नटराज कला केंद्र यमुना विहार द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके सामने। एक बार शारदा जी आप भी आ जाइए, व्यास जी आप कीजिए, शारदा जी और हमारी महिला जी आप भी आइए। आप भी नीतू जी, अनीता जी, शारदा जी, हमारे चेयरमैन साहब। थोड़ा बच के जेंट्स का जेंट्स करेंगे, महिलाओं का आप करेंगे। चेयरमैन साहब आप व्यास जी का कर दीजिए। जय श्री राम। मैडम बारी बारी से मेरा बैग लेके आ। आइए एक बार आप सबसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। सोनू जी, सोनू जी, सोनू भाई। उसके बाद रामायण जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको कमेटी देती है, समर्पित करती है, ताकि 10 दिन निर्विघ्न श्री राम जी का काम सबको दिखाया जा सके और अपने सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको दिखाया जा सके। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मत्था टेको। जय श्री राम। ये भी ना इनकी लो सबकी। हाँ ये आप सबसे निवेदन है कृपया अपने मंच सुनकर देश देशांतर से राजा एवं महाराजा खड़ा है। यहाँ तक राक्षस व दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण कर आए, परंतु इस धनुष को उठाना था दूर, कोई इसे दिल भर हिला न सका, डुला न सका। हे तीन तीन के राजा गणों, हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो विश्वास हुआ ये पृथ्वी, अरे ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले अगर ज्ञात होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। अरे करते नहीं हम ये प्रतिज्ञा, बीच में हो लो तो ऐसी जग हसीन नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को, दुख हानि है, लज्जा है,
क्या है, अब बस क्या है, अब आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो। अरे दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह अरे लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। राजा जनक शांत। इस प्रकार के अनुचित और मिथ्या प्रकार के शब्द अपने इस मुख से ना निकालिए। कहीं ऐसा न हो ये स्वयंवर भूमि इन समस्त वीरों के रक्त से लाल हो जाए। आज तक रघुवंशियों के समाज में अरे जहां तक भी कोई होगा, कोई ऐसे शब्द नहीं कहेगा जिस प्रकार के अनुचित और मिथ्या प्रकार के शब्द प्रभु श्री राम जी को इस सभा में उपस्थित जानते हुए आपने कह डाले हैं। सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, अभिमान से कुछ नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ट्रेन की भांति उठा सकता हूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। सुमेरु पर्वत को कमल दंड की भांति पृथ्वी से उखाड़ कर गाजर और मूली की भांति काट सकता हूं। भैया, फिर आपके प्रताप के सामने ये पुराना धनुष तो चीज ही क्या है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का ताव न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। प्रभु श्री राम जी के होते यह उचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुपते हैं और ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूं, इस धन में की है क्या मिसाल। सारा ब्रह्मांड चल कर दूं, ले आऊं दो सितारों को, अरे सुरमे की भांति पीस के रख दूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष महाराजा जनक, फिर ये पुराना धनुष हर एक दिन के साथ इस गिनती में है। उठाओ जनक के संताप को दूर करो, जैसी आज्ञा करो। मुनिवर, मेरी पुत्री भी आपको प्रणाम कर रही है। कल्याण हो। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे इस परसे से निडर हो जाओ। कहो राजन,
अभी और सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिवर, मैंने प्रण ठाना था। मेरी पुत्री गृह कार्य कर रही थी, एक समय की बात है। मेरी पुत्री गृह कार्य कर रही थी, तभी ये महादेव का महाधनुष, उसने इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया। मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दूंगा। आज मेरे प्रण पूर्ति का दिन है। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जन जनक धनुष के तोड़ा। यह है क्या? भगवान शंकर के शाप की ऐसी दीनहीन अवस्था, जिस धनुष को माता पार्वती वासुकी नाग की केचली में लपेटकर नित्य पूजा किया करती थी, उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था, उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था, उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था। ये धर्म किसने तोड़ा है? इस भरे सांबर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अब ध्यान सिर बदला नहीं तो सब उलट कर डालूंगा। जितना है मेरा राजपाट सब चौपट कर डालूंगा। शांत मुनिराज, शांत हो जाइए। यह शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब और किससे डर सकते हैं? जिन पर कृपा हो आप जैसे ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकते हैं। सेवक रहे हैं हम, सेवा ही जिसका जीवन है। जो गहरी का सा कार्य करे वो इस वर्षे का भोजन है। हे राम बना है अथवा तू, जब क्षत्रिय बल की गाड़ी में उसको मिसाल में है याद आई। दिन का है चोर की गाड़ी में। शांत हो जाइए। सुख का संवाद भी कभी अरे दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। फिर मीठे गन्ने को ही देखिए, कोहलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले भैया राम बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा मुनिराज, अपराधी हम ही सही, हमने ही झैर निचोड़ा है। जो करना हो सो करे। शिव धनुष हमने तोड़ा है। और बचपन में इतनी धनवी तोड़ी, तब तो आप इतना क्रोधित नहीं हुए। इस धनवी में क्या कोई मोती लग रहे हैं जो आज आप इतना गड़बड़ा रहे हैं? और राजा के लगे तू मुंह नहीं संभाल रहा है। तू और जैसे आदि के आगे क्यों आंखें नाल निकाल रहा है। तू श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड छोटी छोटी श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है। मुनिराज, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण ये क्रोध नहीं। मुनिराज,
इस समय जो आपने पहना है किसी ना किसी तरह से अपना सहयोग, जो हमारा पुराना सनातन धर्म है, उसकी संस्कृति को जीवित रखने के लिए छोटा सा प्रयास करते हैं। और ये अगली बार कितना मेरे को सहयोग करना है, और हमें हर बार अजीब सा लगता है। ये मतलब जितना हम कहते हैं उससे ज़्यादा सहयोग अपने आप भेजते हैं। तो ये सबको मालूम है, 30 वर्षों से इनके कारण ये छोटा सा वृक्ष आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। इनका आशीर्वाद हमेशा निरंतर हमें मिलता रहता है। ठीक है। राम गोपाल जी का स्वागत करेंगे चेयरमैन साहब, और साथ में सोना जी। मनीष जी राम गोपाल जी का स्वागत करेंगे। हेमंत जी का स्वागत करेंगे सतपाल जी। डॉक्टर नीरम गोयल जी, जो हमारे क्षेत्र से पूर्व में निगम पार्षद रही और उप महापौर, आपका स्वागत करेंगे शारदा जी। मनोज गोयल जी हमारे बीच, आपका स्वागत करेंगे हमारे प्रधान आरती सिंह जी। हमारे बीच ऋतु बुद्धि राजे जी, आप कृपया मंच पर आ जाएं। शोभा जी आप भी मंच पर आ जाएंगे। भाभी जी, सीमा जी, अभी ले आने दो। सोनिया जी कृपया आप भी मंच पर आ जाएंगे। हमारे बीच हमारे बड़े भाई जगदीश यादव जी आ चुके हैं। आप कृपया मंच पर आ जाएं। आप लोग, मैं सबसे निवेदन करूंगा एक करतल ध्वनि से सबका स्वागत करते रहें। हमारे बीच मदन लाल जी, भाई साहब को नमस्कार और आपका मंच पर स्वागत है। आइए हमारे चेयरमैन सतीश जोशी रोहिणी में शाम को 5 रुपये ठीक है ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। देखिए स्वागत इसलिए हो रहा है कि इन्हीं के मदद से हम इतना बड़ा आयोजन हर वर्ष कर पाते हैं। आप देखिए किसी भी बड़े आयोजन के लिए धन की आवश्यकता होती है, और इसी से ये काम होता है कि इतने वर्ष से निरंतर रामलीला का मंचन हम निर्विघ्न कर पा रहे हैं। मदन जी आप मंच पर आइए, आपका स्वागत करेंगे सोला जी। राजेश जैन जी आपका स्वागत करेंगे आरती सिंह जी। मंच पर आ जाएं। जय भगवान गोयल जी, C9 से अनिल अग्रवाल जी कृपया मंच पर आ जाएं। आपने समझ सकते हैं इतना बड़ा काम इसमें मनीष बंसल जी हमारे सुरेंद्र खत्री जी का स्वागत करेंगे, और सुरेश बंसल जी का भी। आगे जाओ राम गोयल जी का भी स्वागत मनीष बंसल जी।
स्वागत है हमारे म्यूनिसिपल से आनंद चाली जी से वो मंच पे आ जाए प्लीज। आनंद जी का स्वागत महावीर जी करेंगे। हमारी जो और टीम है वह कृपया मंच पर आ जाए, पूरा सहयोग करते हैं। विनोद सैनी जी, हमारे सीए साहब अंकित जी कृपया मंच पर आ जाए। द्वारका सेक्रेटरी जी हमारे बीच एक बार कृपया मंच पर आ जाए। आयुष्मान साहब आपका स्वागत करेंगे। हमारे विनोद जी, शरद जी, महेश गिर जी हमारे बीच में कृपया मंच पर आ जाए। नवीन जी आपके बीच कृपया मंच पर आ जाए। विनोद जी बीच में से दोनों सुनील जैन जी कृपया मंच पर आ जाए। हमारे बीच श्री जय भगवान जी हमारे मध्य हैं, पहले भी सुनील आ गए थे, अभी सुनील जैन जी हमारे बीच। आपका सहयोग पिछले वर्ष से मिल रहा, आपका धन्यवाद। स्वागत है। आइए पुलिस साथ में आइए सर। थोड़ा सा जी पूरा ग्रुप बनवा लो, बड़ा थोड़ा सा बड़ा करवा दो ग्रुप। पीछे ऊपर चले जाओ, चले जाओ, पीछे चले जाओ, चले जाओ। फोटो ले लिया करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों जी मंच पे करण जैन जी हमारे बीच, आपका स्वागत है। ललित जी, ललित भैया जी आपका भी मंच पे स्वागत है। आइए देखिए। नहीं जी, हमारे जिलाध्यक्ष गौतम जी और हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश यादव जी, राम गोपाल जी, और सारी हिंदू समाज समिति की टीम, नीलम गोयल जी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई क्यों? सबसे पुरानी रामलीला है और जितनी रामलीला इस क्षेत्र में शुरू हुई है वो सुरेंद्र मोहन लांबा जी की देवी कहूँगा, संस्थापक वही रही। इस अवसर पर उनका और मैंने जगदीश जी रावण दहन करने के लिए जाते थे, कई बार तो मिट्टी का तेल डालना पड़ता। तो इतनी नाम की कर रही और समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का जो काम इन्होंने किया है वो भी अति प्रशंसनीय है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ इसी तरह आप अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में पूरी भूमिका अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। हमारे बीच हमारे
हिंदू पर्व समारोह समिति के भूमि पूजन के पर्व पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और जिन्होंने लंबे समय तक सच में रोहिणी का अगर किसी ने उद्धार किया हो, आज रोहिणी की जो कीमत है उसमें बहुत बड़ा योगदान। जब रोहिणी के मधुबन चौक पर आते थे तो गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को भरने का काम किया है। भाई मैं जोरदार ताली बजाई जाए। इस समिति के चेयरमैन भाई स्टीव जी, आरपी सिंह जी, मुनीश बंसल जी और हमारे कोषाध्यक्ष सतपाल बंसल जी हमारी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ रहे, मंडल अध्यक्ष रहे और भाई रामलीला में हमेशा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई मोहन सोहनलाल अग्रवाल जी, श्रवण गोयल जी, शारदा गोयल जी, उत्तम गर्ग जी और हमारी पूर्व में ये नाम मैंने बाद में ले रहा हूँ जगदीश यादव जी का। वो कह रहे थे जब रावण को जलाने जाते थे तो वह एक बार पैर धर के होते कपड़े धर। देखिए आज जो परिस्थितियाँ जो ये हमारी मंचन का कार्यक्रम लीलाओं के माध्यम से होता है, देश को अगर बांधने का काम किया जाता है तो मंचन के माध्यम से किया जाता है। ये संस्कार और संस्कृति देने का काम करती है। राजस्थान में चले जाएं या उत्तर प्रदेश में चले जाएं या हरियाणा में चले जाएं या दिल्ली में चले जाएं, भगवान राम की जो लीलाएं होती हैं वो पूरे देश में एक समान एक ही भाषा में की जाती है। भाषा को और देश को बांधने का काम किया जाता है इन रामलीला के माध्यम से। मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। इतना आसान काम नहीं है, ये संस्कार और संस्कृति देने का काम किया जाए। रावण जो थे, रावण भी विद्वान थे, लेकिन रावण ने जो कर्म किए उन कर्मों से उसके पूरे का परिवार नष्ट होता हुआ देखा है। आज जो है, आज जो रावण की भूमिका में जो रोल अदा किया जा रहा है, बहुत से लोग हैं, हमारे युवाएं हैं जो हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से जो देखते हैं। लेकिन आज इस रामलीला के माध्यम से जो हमारे संस्कार देने का काम किया, भगवान राम जो जंगल में गए तो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में गए थे, लेकिन जब वापसी आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में वापसी। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आए तो उन्होंने समाज को बांधने का, जिस प्रकार से उन्होंने अयोध्या के अंदर जाकर रावण को प्राप्त करने का काम किया, तो उनके पास सेना नहीं थी, लेकिन समाज के जितने वर्ग थे उन वर्गों को, चाहे भील थे, चाहे आदिवासी थे, जितनी भी जातियां जंगल के अंदर थी, उनको एकत्रित कर और उस पर समाज को बांधकर रावण जैसे व्यक्ति के ऊपर उन्होंने जो आक्रमण किया, संस्कार देने का काम किया गया। एक बात कहता हूँ कि माता सीता के बारे में लोग कहते हैं, नई पीढ़ियां कहती है हमेशा कि राम जो थे उन्होंने माँ सीता को अपने घर से जब निकाला, क्यों निकाला, इस पर कभी चर्चा करने की आवश्यकता है कि समाज के अंदर किस प्रकार से अगर आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों को खारिज करने का काम किया गया तो भगवान राम जी के द्वारा किया गया था। माँ को और उनके जो पुत्र थे, गर्भ अवस्था के अंदर जब माँ जंगल में गई तो माँ जंगल में जाने के बाद जब उनको जो बच्चे हुए, लव और कुछ आपका स्वागत करें महावीर जी। वास्तव जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया मंच पर आ जाएं। वास्तव जी और सतीश जी कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच करण जी और भाई साहब एक बार आप भी मंच पर हैं, आपका स्वागत करते हैं। ललित भैया जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, अलका भाटिया जी और उनकी टीम, ये भी कृपया मंच पर आ जाएं। आप सबका स्वागत है। और इसके लिए हमारी जो महिला सदस्य हैं कृपया आप सभी मंच पे आ जाएं। अनीता जी, शारदा जी, लाला जी, जी। हमारे बीच हमारे बड़े भाई जगदीश आज इस भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच में सम्मिलित
उत्तर पश्चिम के जिलाध्यक्ष भाई सत्यनारायण गौतम जी, पूर्व विधायक भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी, पूर्व मेयर नीलम जी, हमारे जिला पार्षद भाई धर्मवीर जी, दिनेश शर्मा जी, धनंजय जी, आपके कार्यकारिणी के सदस्य, मुख्य प्रेरणा स्रोत जो हमेशा आशीर्वाद देकर इस कार्यक्रम को ताकत देते हैं, भाई घनश्याम दास गोयल जी, चेयरमैन सतीश ढोल जी, आरपी सिंह जी अध्यक्ष, मुनीश बंसल जी महामंत्री, सतपाल बंसल जी कोषाध्यक्ष, सोहनलाल अग्रवाल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वर्ण गोयल जी संयोजक, शारदा गोयल जी वाइस चेयरमैन, प्रीतम गर्ग जी वाइस चेयरमैन, सभी कार्यकारिणी के सहयोगी, यहाँ आए हुए सभी राम भक्तों, ये हिंदू पर्व रामलीला समिति जैसा नाम है उसी तरह से ये कलाकार यहाँ इस रोहिणी की सबसे बेहतरीन भगवान श्री राम की लीला का प्रदर्शन करने में ये समिति पूरे क्षेत्र में सबसे अग्रणी होती है। मैं इनको बधाई देता हूँ। पूरी समिति की एक ही मंशा होती है कि हम किस तरह से इस क्षेत्र के राम भक्तों को भगवान श्री राम की लीला का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए उनको ऐसी कोई सुविधा ना हो कि किसी का उनको राम भक्तों कष्ट दे, और भगवान श्री राम जी उनको हमेशा वो आशीर्वाद देकर, वो ताकत, वो धन, उसका आशीर्वाद देकर हमेशा हर साल ये बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ और आज इस भूमि पूजन के अवसर पर भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने इन राम भक्तों को वो हिम्मत और ताकत दे कि इनके रास्ते में कोई रोड़ा ना आए, कोई कठिनाई ना आए, और ये हमेशा की तरह आगे बढ़ के भगवान श्री राम की आपकी लीला का बेहतरीन प्रदर्शन रोहिणी के नागरिक को देता रहे। आप सबका जो श्रद्धा और भाव है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत वर्षों से आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बड़े भाई संजीव जी, मैं जाओ नारी शक्ति जिंदाबाद। एक बार मैं तो चाहूँगा कि जहाँ श्री रामलीला महोत्सव का भूमि पूजन हो और भगवान श्री राम का जयकारा ना लगे तो ये तो हमारे लिए बड़ी ही, आज एक बार सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस श्री घनश्याम दास गोयल जी, चेयरमैन श्री ढोल जी, अध्यक्ष आरपी सिंह जी, महामंत्री मनीष बंसल जी, कोषाध्यक्ष सतपाल बंसल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहनलाल अग्रवाल जी, संयोजक सोहन गोयल जी, वाइस चेयरमैन शारदा गोयल जी, वाइस चेयरमैन प्रीतम गर्ग जी, उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद गोयल जी उसमें लगे हुए हैं। ये जो हमारा रामलीला का जो महोत्सव होता है, एक तो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है, उनको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे बढ़ाता है। जैसे हम रामलीला का आयोजन करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इससे काफ़ी हमारे सनातन धर्म के प्रति उनको कुछ सीखने को मिलता है। ये आयोजन जो रामलीला के माध्यम से हम करते हैं और हमारे बच्चे इनसे कुछ सीखते हैं और वो आगे अपने जो साथी होते हैं उनको आगे बताने में सहयोग करते हैं। मैं भगवान श्री राम जी से यही प्रार्थना करूँगा, माँ सीता से भी यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सभी एक परिवार एक साथ जुड़कर ऐसे ही धार्मिक कार्य करते रहें और ऐसे ही हम रामलीला के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ी को आगे जो ज्ञान के प्रति प्रोत्साहन करते रहें। मैं भाई का और पूरी कमेटी का पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक चीज में आज सभी भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमारी मातृ शक्ति बैठी है,
मैं एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये रामलीला मंच एक बहुत बड़ा मंच होता है। जो आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म को एक साथ लेकर चलने का जो हमारे ऊपर बड़ा ही एक आपने देखा है कि बड़ी जिम्मेवारी के रूप में आज हमारे ऊपर है। आप देख रहे हैं कि कैसे दूसरी शक्तियां माइकों के माध्यम से रोडों पर निकलकर, जैसे आपने देखा कि वह कोड को लेकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम सनातन धर्मियों को भी एक साथ मिलकर अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा, और ना कि हमने जाति पातियों में ना बढ़कर एक साथ हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए एक साथ आए और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधान श्री राकेश गुप्ता जी, श्री बालाजी मंडल समिति के प्रधान श्री राकेश गुप्ता जी कृपया मंच पर आए। जो भी बालाजी समिति के विश्राम समिति के प्रधान है, आपका मंच पर स्वागत है। आपका स्वागत करेंगे हमारे आरपी सिंह जी, अंकित जी कृपया मंच पर बीच में है, आपका स्वागत है। आरपी सिंह जी आप आइए ना। के घर जी का स्वागत करेंगे सुखपाल जी। सर आप जो हमेशा अपने आप फोन करते हैं कि अपनी बात सेफल नहीं हुआ है, आपका मंच पर स्वागत है। आपका स्वागत करेंगे आरपी सिंह जी। हमारे भी डॉक्टर रस्तोगी जी, आपका मंच पर स्वागत है, कृपया आइए। आपका स्वागत करेंगे महावीर जी। वासव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, सतीश जी कृपया मंच पर आ जाएं। जय श्री राम। हमारे कुछ पालक के साथी आए हुए हैं। आप सबका स्वागत है। हमारे बीच राजेश जी G23 से आपके सर मैम सर आओ सर। सतीश सिंगल जी, आलोक जी के साथ ही इस मार्ग में जी हमारे बीच मेरे छोटे भाई आलोक शर्मा जी, हमारे पूर्व मेरे पास सोनिया मेहरा जी कृपया मंच पर आ जाए। ठीक है। सोनिया मेहरा जी का स्वागत करेंगी नीरव जी। योगेश कौशिक जी भी हमारे बीच, कृपया अभी मंच पर आ जाएं। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष कृपया मंच पर आ जाएं। हमारी मार्केट के चेयरमैन श्री केसी गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। आप सुनील जी, आपका स्वागत करेंगे। आगे जी आपकी पिछला ठीक है। अनु भी आप बीच में। प्रमोद जी का स्वागत करें महावीर जी। प्रेम जी कृपया भी मंच पे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने सभी साथियों से, हमारे जितने भी अतिथि आए हैं आप ध्यान रखें किसी का स्वागत ना रह जाए। आपसे नम्रता का स्वागत है। और इतने वर्षों से रामलीला का जो निर्विघ्न कार्य चल रहा है आपके उससे चल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी मेरे महाजी श्री ज्ञान अग्रवाल जी जो कि बहुत सी संस्थान जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और साथ में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सब जो मंच पर आसीन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सर्वप्रथम
विजेंद्र जी का स्वागत करेंगे हमारे चेयरमैन श्री संदीप जी और प्रधान श्री आरपी सिंह जी। आपसे निवेदन है करता ध्वनि से सबका मंच पे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच रोली जी आए हुए, आपको भी मंच पे मैं आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत है। भाई साहब स्वागत है। और ठीक है, ज्ञान अग्रवाल जी आपके तो बीच में आए हैं, आपका स्वागत करेंगे सोनलाल जी और हमारे चेयरमैन श्री संदीप जी। रोली जी के साथ आपका स्वागत शारदा जी करेंगे और नीरव जी। मैम सामने आइए। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। मैम और इसमें जी क्या हाल चाल है? अरे देखो गुरु जी हमारे एक मिनट परम आदरणीय डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर नीलम गोयल जी, हमारे पूर्व चेयरमैन शिक्षा समिति, निर्माण समिति और यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद भाई आलोक शर्मा जी, हिंदू पर्व समारोह समिति के चेयरमैन सतीश भुर्जी, आरपी सिंह जी, गोयल जी, शारदा गोयल जी, प्रीतम गर्ग जी और हार्दिक अजीज हमारे साथी और अग्रवाल सभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद्र अग्रवाल जी और आए हुए सभी गणमान्य उपस्थित बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों और साथियों, हिंदू पर्व समारोह समिति से मेरा लगभग 30 साल का नाता है और मैं देख रहा हूं कि हर वर्ष कितनी भी विपदाएं आई, कितने भी उतार चढ़ाव हुए, लीला का मंचन जारी रहा। ये सफल एक दिन का नहीं है, ये 1 साल का नहीं है। मैं अपनी इस टीम को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जब जब वो कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना नहीं, एक अकेला थक जाए तो मिलकर जोर लगाना। तो जब जब आपने अकेली पड़ी शारदा जी, आप भी उनमें से हैं, तो आपने सबने हाथ बढ़ाया कि साथी हाथ बढ़ाना साथी और कारवां चल पड़ा। मैं आपको बधाई देता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि उतने ही उत्साह के साथ आज भूमि पूजन के अवसर पर हम यहाँ एकत्र हुए और आगाज बताती है कि अंजाम कितना हसीन होगा। रामलीला सर्वोत्तम है, उच्चतम है। मंचन दिल्ली के मानी हुई रामलीलाओं में से एक है। दूर दूर से लोग रामलीला देखने आते हैं और मैं देखता हूं कि सामान्य तो रामलीलाओं में मंचन में कम और मेले में ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन हमारी रामलीला में मेले में भी और मंचन में चित्रा जी भी आ गई हैं, हमारी पूर्व पार्षद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपने बीच में उपस्थित होने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और पिछले वर्ष में तो मुनीष जी मुझे क्रेडिट देंगे कि आप भी उन्हें साथी हाथ बढ़ाना चाहती है।
इस बार भी दिक्कत तो बहुत आ रही है। पिछली बार जो दिक्कत आई थी और हमारे लोग हतोत्साहित होने लगे थे, तो मैंने भी शायद वही भूमिका निभाई थी। मुझे भी खुशी आत्मसंतुष्टि है क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ आप सब के बीच में इस रामलीला से वर्षों से जुड़ा और हमारे बीच में महाराज जी आए, उनका भी बहुत हृदय किया है, अभिनंदन करता है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम आई हमारे ग्राउंड में किसी और ने पहले बुकिंग कराया और इसके बाद जो भाई साहब ने आउट ऑफ वे जाकर उनका कैंसिल करवाया, उनके प्लान बुला के उनको काफ़ी टाइट किया है और हमारी बुकिंग दोबारा से करवाई। और इस वर्ष क्योंकि भाई साहब बीडीए के भी सदस्य माननीय सदस्य बहुत वर्षों से और बीडीए में जो बात कही जाती है प्रकृति की लकीर होती है। इन्होंने पिछले वर्ष एक नियम बनवाया कि जो भी रामलीला पिछले वर्ष रामलीला कर रही थी उनको प्रथम 15 दिन जब भी साइट खुलेगी सबसे पहले उनको रेफरेंस दी जाएगी और 15 दिन बाद ही दूसरा कोई उस पर बुकिंग करा सकता है। और 15 दिन में समझा जाएगा या तो रामलीला कर नहीं रहा और या नहीं करना चाह रहा, तो तब दूसरे को प्रेफरेंस मिलेगी। तो इतने वर्षों से दिक्कत आती थी कि हम 30 वर्षों में रामलीला कर रहे हैं और कोई और आगे बुकिंग करा ले, हमेशा डर जाता है। तो पिछले वर्ष भाई साहब ने ये नियम बनवाया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि विधायक जी शुरू से हमारे साथ और कंधे से कंधे मिलाकर चला है। चलिए कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है, मतलब बहुत बारी इस हमारे साथ समस्याएं हुई है, लेकिन हमने विधायक जी को इस समस्या का समाधान के लिए जब भी हमने आग्रह किया है और पूरा सहयोग किया विधायक जी। और विधायक जी ने हमेशा बल्कि ये पूछते हैं भाई तुम्हारे प्रोग्राम क्या है, इस बार रामलीला होनी है नहीं होनी है। कई बार हमें आगाह करते हैं कि भाई क्या बात अभी तक हमारे पास आए नहीं आप कोई मामला लेके, लेकिन ऐसा होता है कि विधायक जी हमसे ज़्यादा कुछ पर ध्यान देते हैं और इसके लिए मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। विधायक जी ने एक काम और बहुत बढ़िया किया था। हमने सिर्फ एक बार आग्रह किया था विधायक जी से, क्योंकि विधायक जी के हाथ में पावर बहुत है। विधायक जी हमारे कर्मठ बहुत हैं, कोयली के सभी लोग जानते हैं। विधायक जी शुरू से जब विधायक जी कांग्रेस से बहुत बड़ा एरिया था, जब से मैं देख रहा हूँ विधायक से काम का क्षमता मैं साथ साथ ही देखता रहता हूँ विधायक। और विधायक जी ने एक काम ऐसा किया था जो इस रामलीला पर बहुत सारे जैसे आप बादल छाए हुए थे उसी प्रकार से हमारे दूसरों के बादल छाए हुए थे। विधायक जी ने 1 घंटे मेरे कहने पर इसको रामलीला ग्राउंड कोशिश कराया था और उसमें बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। उसके लिए मैं विधायक के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच हमारे गुरु परम श्रद्धेय बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है रामलीला का मंचन प्रतिवर्ष जो होता आ रहा है, इस वर्ष भी बढ़ चढ़कर भी होगा और आगे भी होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? उसमें एक विशेष बात है, राम का नाम, राम का वाण, राम का राज्य और राम की लीला। जब तक इस संसार का अस्तित्व रहेगा, जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा, गंगा यमुना का जब तक नाम रहेगा इस तरह नामों पर, तब तक राम का नाम चलता रहेगा, तब तक राम का वाण चलता रहेगा, तब तक राम का राज्य का नाम रहेगा और तब तक राम की लीला चलती रहेगी। आज भी किसी को कोई बुखार आ जाए, पेट में दर्द हो जाए तो क्या कहते हैं, कोई दवा दे देते हैं, दवा देने के बाद वो ठीक हो जाता है तो कहेंगे ओहो क्या ये तो पेट के लिए राम वाण औषधि है। तो ये राम वाण औषधि है। राम की लीला कभी रुकती नहीं है, अनवरत भाव से चलती रहती है। मैं आपको विधायक जी ये बता देना चाहता हूँ, विदेशों में भी इस राम के चरित्र को अच्छी तरह से गाते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं, जबकि हमारा तो वास्तव में
राम का ये राज्य, राष्ट्र भारत का पूरा विश्व। पहले तो मैं माँ कौशल्या को प्रणाम करता हूँ कि माँ कौशल्या ने केवल अयोध्या के राम को जन्म दिया, पर माँ केके ने तो अयोध्या के राम को नहीं, विश्व के राम को जन्म दिया और हमको राम राज्य दिया। माँ केके का चरित्र सर्वोपरि है। कौशल्या को वर्णन है ऐसा पुत्र जन्मा और हमारे इस विश्व का कल्याण करने का एक रास्ता प्रशस्त कराया। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, उनके बेटे राम, जहाँ राम ने जन्म दिया, वहाँ बाबर का क्या काम, जहाँ राम ने जन्म लिया वहाँ बाबर का क्या काम। वर्षों का ऊर्जा मुद्दा मोदी योगी ने सुलझाया है और जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं। ऐसी सत्ता भी वंदन करने योग्य होती है। जो सत्ता सत्य का साथ निभाए, सत्ता पाकर के भी सत्य का अनुकरण करना न भूले, वो सत्ता भी है। ऐसी सत्ता का सानिध्य, ऐसी सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राजनेता, ऐसे धर्म नेता का जिस संस्था को साथ मिला हुआ हो, उसकी रामलीला हमेशा चलती रहेगी। रोज रामलीला होगी, 15 दिन नहीं, हमेशा रामलीला, सुबह और शाम भी रामलीला होती रहती है। दूसरी बात, जब सिकंदर हमारे राष्ट्र भारत में आया था, मैं एक बात विशेष ध्यान से आप सुनना, मेरी विधायक जी के काम के लिए तो ही, लेकिन आप सबके कानों में ये बात पड़ेगी तो अच्छा लगेगा। तो इनकी गुरु परंपरा में था सुकरात, शायद आपने सुना होगा। जब सिकंदर आया था तो सुकरात ने कहा था, ज्ञान जी कि सिकंदर आप भारत जा रहे हो, हमारे लिए क्या लेकर के आओगे, भारत से कोई सौगात लाओगे? बोले आप बताओ क्या लेकर के आऊं। तो सिकंदर से कहा सुकरात ने, जब हिंद को जाना, आ जाओ आपका फोटो खींचेगा, आ जाओ गोरे के बीच में मेरा मुखड़ा काला लग रहा है। सिकंदर से कहा सुकरात ने, जब हिंद को जाना, हमारे वास्ते भारत से कुछ सौगात ले आना। लाना सहनशाह वहां से कृष्ण की गीता, बादशाह भूल मती जाना, कहानी राम और सीता। बड़ी मुश्किल से आएगा वो गंगा जल भी ले आना, जिसे पी करके ऋषि ने वेद का तत्व पहचाना। बादशाह हिंद से बांस की बांसुरी आवी लाना, अरे बजा के हम भी देखेंगे कैसा स्वर है मस्ताना। तो ये तो भाई विदेश में भी जिस चीज के लिए तड़पते हैं, वह बड़े बड़े भामाशाहों के द्वारा और बड़े बड़े राजनेताओं के सहयोग के द्वारा आपको हर साल उनका चरित्र देखने को मिलता है। आपको कहीं बाहर जाना है ना तो चरण चाहिए, और परमात्मा के पास में जाने के लिए आचरण चाहिए। ये रामलीला है तो आपका कल्याण होगा। मैं इस समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस समिति के पदाधिकारी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु, भागवत जी का ये श्लोक है दूसरे स्कंद का। विशेष तो राजा लोकपति गुरु, आज भी राम राज्य आ जाएगा यदि राजनेता और धर्म नेता दोनों ये पिलर है सनातन संस्कृति के, और यदि दोनों सुधर जाए ना, राजनेता और धर्म नेता, तो आज भी राम राज्य जाने में कमी नहीं है। आज भी राम राज्य भारत की तो चलेगा, विश्व में राम राज्य होगा। इसलिए राजगद्दी और धर्मगद्दी की कोई व्यवस्था चरमर आती है तो राजगद्दी सहयोग देती है, और जब राजा की गद्दी चरमर आती है तो व्यास की गद्दी उसको सहयोग देती है।
इसीलिए व्यास घाटी को छोड़कर कैसे चले जाओ, हम तो झगड़ लेते हैं आपको। तो इस समिति को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ सभी बहनों के लिए और सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मनसा सिंह जो भी मकसा ज़्यादा व्यस्त तो मैं नहीं रहता हूँ, अंतर थोड़ा इतना है, मैं कम व्यस्त रहता हूँ, राजनेता थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रहता है, पर दोनों के दोनों व्यस्त कम रहते हैं लेकिन अस्त व्यस्त ज़्यादा रहते हैं। और जो अस्त व्यस्त रहता है उसको थोड़ा सा काले रंग की तरफ देखते रहोगे तो व्यस्तता उसकी घट जाएगी, और अस्त व्यस्त जो हो रहे हैं ना वो दूर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी और जीवन सुखमय व्यतीत होगा। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए जिस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया है उस कार्य में आपको वरीयता प्राप्त हो और हमेशा बड़े बड़े भामाशाह ऐसे ही दान सहयोग करते रहें। और मैं भी विधायक जी से विजेंद्र जी से भाई जट्टारी के महाराज यहाँ दिल्ली के एक विशेष राजनेताओं में से हैं, आपके बारे में मैं सुनता रहता हूँ। आदमी को अपनी औकात स्वयं नजर नहीं आती है, किसी दूसरे की आंख से जब दिखता है तो मैं आपको अच्छी तरह से सुनता हूँ, आपके बारे में अच्छी तरह से मुझे लोग बताते हैं। आपका व्यक्तित्व एक तप और त्याग की तपोमूर्ति है, व्यक्तित्व की धनी है, ऐसे ही आप बने रहें। भगवान से प्रार्थना करता हूँ। याम वेदा देवना पुत्र सुपास्ते दया मामा देवता अपनी मेधा विद्युत स्वाहा, आपकी ऐसी मेधा बुद्धि प्राप्त हो और सभी समिति वालों की बुद्धि ऐसी बनी रहे ताकि हमेशा यह कार्य पुनीत कार्य आप कराते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और मैं माफी चाहूँगा आपको अवरोधक बनूंगा थोड़ा पीछे होगा, आपको मैं उनको जरूर वहाँ बधाई दूंगा। तो व्यापार जगत क्या मूर्ति है, इसको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये साधारण पद नहीं है, बड़ा प्रतिष्ठित पद है और पूरी भाजपा पार्टी का इसमें साथ मिला हुआ है। पद देने वाले को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पद लेने वाले को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम गुरु जी का स्वागत अनूप जी भी करेंगे। अनूप जी आभारी हाँ जी, अनूप जी को अनूप जी को आशीर्वाद देते हुए गुरु जी। हमारे बीच अग्रवंश की प्रधान दिनेश जी आप भी बीच में आ जाए। नवीन जी का स्वागत करेंगे महावीर जी। राजेंद्र भारद्वाज जी कृपया मंच पर आ जाए। प्रकाश बिंदल जी आप कृपया बीच में आए, आपका स्वागत करेंगे हमारे प्रधान श्री आरपी सिंह जी। दिनेश जी बत्रा जी कृपया मंच पर आ जाए। मैम आगे से आना। राजेंद्र भारद्वाज जी का स्वागत वरिष्ठ संसदीय कृपया मंच पे आ जाए। सर विकास करके मंच पर आए। सर आप गुरु जी सर जी फोटो खिंचवाने के लिए साथ में सर
लाला जी कृपया मंच पर आ जाए। आपसे निवेदन है, जो स्वागत होता जाता है कृपया मंच से स्थान देते रहें ताकि सभी का स्वागत कर पाए। सोनलाल जी और शर्मन जी एक बार मंच पर आ जाए। कृपया बीच में, और बहुत सी संस्थाओं में हमारे साथ शीर्ष पद पर आपका स्वागत है। शशांक जी, शशांक मुकीम जी कृपया आप बीच में आए, आपका स्वागत है। रोली बरवा जी एक बार फिर से मंच पर आ जाए आप। इंद्रजीत जी कृपया मंच पर आ जाए। हमारे बीच नितिन बंसल जी, उमेश गर्ग जी कृपया आप भी मंच पर आ जाए। संरक्षक श्री जियालाल गर्ग जी और प्रधान श्री राकेश गोयल जी कृपया आप भी मंच पर आ जाए। थोड़ा पीछे गुलशन जी ये देखिए शिव शक्ति मंच पर आ जाए। एपी जी, राकेश जी, मुक्ता जी आप भी मंच पर आ जाए। कपिल जी सामने, श्रवण भैया सामने। हाँ जी, स्वागत के बाद कृपया आपसे निवेदन, कृपया मंच से आ जाएं। शुक्ला जी, शोभा जी, हमारे बीच हमारी बहन गीता जोशी जी हैं, आप कृपया मंच पे आए। बाबूलाल जी फोन से मेरे बड़े भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाए। राजेश गुप्ता जी मेरा भाई भी है, प्रशांत जी से आपका मंच पर स्वागत है। राजेश जी का स्वागत करेंगे हमारे चेयरमैन श्री संदीप जी। सर बीच में आए, आपका स्वागत करेंगे आरपी सिंह जी, आइए प्रधान आरपी सिंह आप बीच में आइए जी। मनी जी आपका मंच पर स्वागत है। हमारा सेवा करते हैं तभी राम जी का काम चलेगा। परवीन जी, नितिन जी, रमेश गर्ग स्वागत करेगा। आप भी राजपुरी जी, सब लोग ऊपर हो गया, स्वागत करें। संसदीय रिपोर्टर से राजन जी, चंदन जी को मंच पर आए। सब लोग खाना लेके जाएंगे। श्री राम जी संपादक है, हमारे सहयोगी हैं संस्था में, हिंदू पर्व में, और इनकी टीम इसमें चंदन जी और राजन जी, आप दोनों का स्वागत है जो कि हमारे साथ लगातार 10 दिन रहेंगे और बाइट्स और यूट्यूब और जितना भी सोशल मीडिया कार्य है इनको दिया गया। लाइव टेलीकास्ट चलेगा, 4 घंटे राम मिलेगा। जय श्री राम। आए हुए सभी राम भक्तों जितने भी हमारे साथी हैं, किसी का नाम रह गया हो राम सर माफ करिएगा और मंच पे जरूर आएंगे। हिंदू भजन के जितने भी कार्यकर्ता है सभी से अजीत जी करो। अरे यार फोटो कर देना आप कर ले हमारा ओ सर हां इनका लो अच्छा सपना साउंड से
हमारे मद्रास क्लब से डायरेक्टर श्री सोनू शर्मा जी, सन्नी जी, कृपया आप भी प्रधान जी और महामंत्री का स्वागत करें। राजगुरु जी, सुधीर जी, विवेक सिंह जी, अजीत जी, काजल, हमारे बीच निखिल अग्रवाल जी, कृपया मंच पे आए। तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया पिछले साल में मेहनत की आप लोगों ने हमारे साथ, आपको साधुवाद और आपका मंच पे स्वागत है। सोनू शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं और सीमा जी, आप दोनों का मंच पे पहले सबसे पहले स्वागत है। सीमा जी हमारे मेकअप डायरेक्टर हैं, आपका स्वागत है। शारदा जी एक बार मंच पे आ जाए। जिसका स्वागत हो गया वो नीचे आ जाए स्टेज से। नहीं भी हुआ दोबारा आ जाना। नहीं नहीं होने दो। नहीं नहीं
कृपया मंच पे आ जाए। हमारे LSS कैटनर से हमारे भाई कृपया आप भी मंच पे। अनुज जी आप भी मंच पे। मैं आत्मा से, रूह से पक्की सनातनी हूँ। तो मुझे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ आने का और हमारे हिंदू पर्व समारोह समिति से जुड़ने का मुझे मौका मिला। देखिए इन्हीं बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं हर वर्ष आती हैं केंद्र द्वारा थी। इनका भी साधुवाद इस वर्ष भी इनसे अपेक्षा रहेगी कि आज भी 2 बजे के बाद बैठेंगे, जो भी ग्राफिक्स का काम है आज शायद पूरा करेंगे, सभी के साथ में रहेंगे। 2 बजे के बाद मेरे ऑफिस में बैठेंगे आप लोग। और इस वर्ष 3 तारीख से 12 तारीख तक रामलीला मैदान में मंच रहेगा। पुनीत आइसक्रीम मालूम खाइए अगर मंच पे आ जाए बेटा, मंच पे आ जाओ। पुनीत आप सबसे निवेदन है सब भोजन प्रसाद लेके जाए। जय श्री राम। मेरी आवाज में आ रही है, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अपनी मिलिट्रिया जितने भी लोग हैं, जितनी भी टीम है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लांबा जी का स्वागत भी करेंगे। देखिए ये पौधा इनके बड़े भाई के द्वारा ही लगाया हुआ है। 30 वर्षों पहले सुरेंद्र मोहन लांबा जी ने ही ये कार्य शुरू किया था। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके छोटे भाई रवि जी हमारे बीच आपका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत करें सिंपल जी, साथ में रवि आइए रवि। हाँ सर आइए सर। रोनी भगवा जी बहुत ही अच्छा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यही संपन्न करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष रामलीला का कार्य निर्विघ्न हो, क्योंकि शुरू में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और ये हमारी फिर से परीक्षा ली जा रही है। फिर से भगवान से प्रार्थना है कि इस वर्ष हमारा जो 10 दिन का ये यज्ञ है ये निर्विघ्न हो। हमारे बीच लाइट से रमेश जी आप मंच पे आपका स्वागत है। साथ हमारा देखेंगे